to this video. After discussing Yukawa theory in previous video, we are able to conclude that a proton and neutron and proton remain inside the nucleus when nuclear forces became dominant on Coulombic force of attraction. As the atomic number increases, it's mean that the number of proton and neutron increases. It will be seen that the nuclear stability will be affected. The stability of the nucleus will be affected because the force of attraction that is developed due to proton-neutron interaction or exchange of proton and neutron was less dominant as compared to force of attraction that is arises due to proton charges. As the atomic number or number of neutron or proton increases, the reason behind is that as the atomic number means number of proton and neutron will be increases, the two important phenomena will be occur. The first one is increase in nuclear size. जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी न्यूक्लियस का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. अब साइज़ इंक्रीज़ होने से आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे किस तरह का इफेक्ट होता है, दैट विल बी क्लियर बाय कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल. लेट्स सपोज आपके पास एक न्यूक्लियाई था जिसको आप लार्जर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, हैविंग एटॉमिक नंबर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ neutron and proton. It contains large number of proton and neutron that is represented as and you have a small nuclei, other nuclei that is known as large nuclei. It is also known as heavy nuclei, heavier nuclei. The other nuclei that has small mass, जिसका small mass हो, small atomic number हो, the number of nucleon in this case are very small and can be adjusted as कि इस तरह से इसमें जो आपके पास न्यूक्लियन होंगे, जो आपके पास पार्टिकल होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे. द आर डिस्टेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ न्यूक्लियन विल बी इक्वल टू 0.8 femtometer and in this case the exchange of proton into neutron will be greatly occur and the nuclear forces will be dominant are greater than Coulombic force of attraction. तो इस केस में आपकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस will be high because every particle is equally spaced and the distance between this particle is 0.8 or somewhat लेस देन 0.2. कि आपके पास अगर A1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, आप फेमटोमीटर 0.1 0.2 0.3 और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वैल्यू 0.8 to 1 तक लाई कर सकती है. इससे आपकी इस केस में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता. तो इन दिस केस आपकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या होंगी, ग्रेटर होंगी देन कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इन दिस केस रिपल्सिव फोर्सेस विल बी रिसेसिव एंड द न्यूक्लियर फोर्सेस विल बी डोमिनेंट. बट इन दिस केस there will be different type of forces arises. The first one between the two nuclei, let's suppose it is 0.8 femtometer.
but the distance between this nucleus and this nucleus is this nucleus and these two fundamental particle, if the distance between two fundamental particle will be increases, it will be greater than 0.8, and the distance between this fundamental particle and this fundamental particle will also be increases, that is also greater than 1 or leads toward 2. इस केस में आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो स्टार्टिंग रेंज आपकी 0.8 से और एंडिंग रेंज आपकी 2 तक जाती है। तो इस रेंज में आपके पास क्या होती हैं, आर वैल्यूज़ वेरी करती हैं इन लार्जर न्यूक्लियाई, दैट्स वेयर द force of attraction between the two fundamental particle will be increase and decrease, and overall the magnitude of the nuclear forces will be less effective as compared to the nuclear forces of smaller nuclei. Simply हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो force of attraction जनरेट होती हैं वो लेस उनकी मैग्नीट्यूड होती है, सो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर ओवरकम कर सकती हैं, आल दो दे हैव ग्रेटर वैल्यू, आल दो उनकी मैग्नीट्यूड हाई होती है, बट it is chance that these nuclei will be broken if their coulombic force of attraction will be dominant. अगर इनकी coulombic force of attraction dominant हो जाए और nuclear force of attraction से जो होती है वो आपके पास क्या होती है, small होती है, repulsive forces dominant होने के chances ज़्यादा होते हैं, that's why these nuclei are unstable. In periodic table, lead is the heavier nuclei. Above the atomic number of lead will be considered as least stable because their nuclear force of attraction will be somewhat less than that of the coulombic force of attraction. The second reason of the instability is increase in the nuclear energy. Second instability reason, increase in energy of the system, in this case as we know that the nuclide, that is the fundamental particle of the nucleus, neutron and proton, are actually belong to the elementary category of fermions. Elementary category or type of fermions, and they obey, fermions are the particle that obey, that follow Fermi Dirac statistic. Having odd half spin, that is 1/2, 3/2 and so on, and obey Pauli-Experian rule. इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह से, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी एक्सप्लेन. एनर्जी ऑफ सिस्टम आप न्यूक्लियन की उस वक्त एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूक्लियस के अंदर कि आइदर इट विल बी हाई और लो. इफ़ इट विल बी हाई द न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल टुवर्ड इट गिव अनस्टेबिलिटी, एंड इफ न्यूक्लियस सिस्टम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी लो, न्यूक्लियस विल बी कंसिडर एज स्टेबल. By explaining this phenomena we can use the concept of fermions, as we know that neutron and proton are actually the type of neutron, proton and electron. Some electron be actually the type of elementary, actually belong to the elementary category of
फर्मियंस। तो फर्मियंस को आप इस तरह से डिफाइन करते हो, वो पार्टिकल्स जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक को ओबे करें, फॉलो करें, और उनके ओड हाफ स्पिन क्या होनी चाहिए, ओड हाफ स्पिन होनी चाहिए, दैट इज़ 1/2 और 3/2 हाफ स्पिन। वो उनके पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है, 3/2 होती है, कभी भी फुल डिजिट नहीं होती, 1 नहीं होती, 2 नहीं होती, एंड ओबे द पॉली एक्सक्लूजन। इसको आप थोड़ी सी इस तरह से ज़्यादा डिफाइन करोगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर द फर्मियंस because it obey Fermi Dirac statistic and having the spin 1/2 and 3/2 and obey Pauli exclusion rule. According to this rule, इस Pauli exclusion rule के according greater than 2 identical fermions never exist in same quantum state मीन के सेम एनर्जी स्टेट में कभी भी आपके 2 आइडेंटिकल फर्मियन एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप इस कंसेप्ट को इलेबोरेट करो तो आप ये कह सकते हो कि लेट्स सी सपोज आपके पास एक फर्मियन, आपके पास न्यूट्रॉन है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, एक फर्मियन आप न्यूट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हो, एंड द सेकंड आपके पास फर्मियन इन द न्यूक्लियाइड इज इक्वल टू प्रोटॉन, that will be represented as in such a way because they have spin angular quantum value, spin quantum number value। अब आपने इन दोनों को एनर्जी स्टेट में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में क्या करना है, अरेंज करना है इन न्यूक्लियाइड। तो आप कभी भी इस तरह से अरेंज नहीं करेंगे कि आप एक ही एनर्जी स्टेट में 2 से ज़्यादा प्रोटॉन्स को आप एडजस्ट कर दो या 2 से ज़्यादा आप न्यूट्रॉन को एडजस्ट कर दो, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, आइडेंटिकल फर्मियंस हैं। इस कंसेप्ट को आप इलाबोरेट करने के लिए लेट वी सी एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल वी एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम दिस कंसेप्ट। लेट्स सपोज आपके पास एक एनर्जी लेवल n1 है, n इज इक्वल टू 1। इस केस में आपके पास क्या प्रोटॉन है, आपके न्यूक्लियाई के जो प्रोटॉन है, लेट्स सपोज p इज इक्वल टू 3, तो आपके पास जो फर्मियंस होंगे वो इसके 3 होंगे, और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आपके पास 4 हैं, तो न्यूट्रॉन के फर्मियंस भी आपके पास फर्मियन के फॉर्म में एग्जिस्ट करोगे, ये भी आपके पास क्या होंगे, 4 होंगे। एंड वी हैव टू एडजस्ट दीज 2 टाइप ऑफ फर्मियन इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। तो अगर आप इसको डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट में आप इनको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इस तरह से करेंगे कि आप प्रोटॉन को इन फर्स्ट एनर्जी स्टेट प्रोटॉन विल बी एग्जिस्ट इन सच अ वे एंड टू न्यूट्रॉन विल बी एग्जिस्ट इन सच अ वे अकॉर्डिंग टू दिस पॉली एक्सक्लूजन रूल। अब आप थर्ड प्रोटॉन को कभी भी इधर एडजस्ट नहीं करेंगे, थर्ड प्रोटॉन विल बी लाई इनटू सेकंड एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। तो इस केस में आप थर्ड फर्मियन को, प्रोटॉन को, दैट विल बी एक्ट एज ए फर्मियन पार्टिकल, जिसको आप फर्मियन बोल रहे हैं, एलिमेंटल फर्मियन को आप दूसरे एनर्जी लेवल में तीसरे को एडजस्ट करोगे। कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि इस पार्टिकल को इधर एडजस्ट कर लें, बिकॉज यू कैन से कि हाई एनर्जी लेवल पे अनस्टेबिलिटी होती है तो हम क्या करें, इसको दूसरे पे करें। नहीं, वी नेवर बी अरेंज दिस फर्मियन इनटू सेकंड एनर्जी लेवल because it obey Pauli exclusion rule. According to this rule, 2 identical fermion will be exist in same state, but the third one will be go to higher state, and fourth one will be go to second state, and fifth one will be go to higher state. And similarly आपके पास आपके पास fermions क्या होंगे, न्यूट्रॉन के fermions 2 इधर एग्जिस्ट करेंगे। अब ये वाली स्टेट जो होगी आपकी क्या होगी, स्टेबल स्टेट होगी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास ऑड इवन कंसेप्ट हो, मीन के एक एनर्जी स्टेट में आपके पास इवन फर्मियंस हैं, ये भी आपके पास इवन है, ये भी आपके पास इवन है, दिस एनर्जी स्टेट इज़ मोस्ट स्टेबल स्टेट। और इस केस में आपके पास ऑड है और इस केस में आपके पास इवन है,
ऑड इवन है, मीन के ये ऑड और ये इवन, तो ये भी आपके पास स्टेट क्या है, स्टेबल स्टेट है। तो इस टाइप के जो न्यूक्लियाई होंगे वो समवट स्टेबल होंगे, उनकी सिस्टम की एनर्जी इतना ज़्यादा हाई नहीं होगी और वो ज़्यादा क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब हम नाउ वी टेक एन अदर एग्जांपल इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब आइदर द न्यूक्लियर एनर्जी विल बी हाई और लो इन विच केस। एग्जाम्पल आप अगर लेते हो, लेट्स सपोज यू हैव एन एलिमेंट हैविंग symbol x, you can represent x symbol, its atomic number will be z and atomic mass will be a। आपके पास एटॉमिक मास की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 12 है, उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल सम है वो आपके पास 12 है। और इस केस में आपके पास जो इसमें आपके पास 12 है और आपके पास जो आपका z है वो आपके पास 6 है। लेट्स सपोज आपके पास द अदर एलिमेंट दैट इज इक्वल रिप्रेजेंटेड बाय y, उसकी कोई सिंबल y है, उसका एटॉमिक नंबर दैट्स विल बी इक्वल टू 7 एंड एटॉमिक नंबर a दैट्स विल बी इक्वल टू 13। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट, कौन सी आपके पास मोस्ट स्टेबल स्टेट है। इस चीज़ को आप क्या करना चाहते हो, आप डिसाइड करना चाहते हो कि विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट। In order to decide the most stable state, we use the Pauli exclusion rule and explain the energy level diagram। energy level आप diagram इसकी draw करोगे, इस atom की भी, इस atom की भी। आप first of all you have to find the number of neutron, the number of proton that will be equal to 6 and the symbol of proton that will be represented as a fermion proton that will be equal to this symbol। आप इसको क्या कर देते हो, represent कर देते हो। and the number of proton and the number of neutron is equal to, according to proton neutron hypothesis, the number of neutron will be calculated as a minus z। a is equal to the atomic number 12 minus 6 is equal to 6। so it's in this case the number of neutron in this case example में number of neutron that will be equal to 6। in second example we have to calculate the number of neutron, that is the number of proton that will be equal to 7 and the number of neutron is equal to in this case a minus c that will be equal to 30 minus 7। आप इसको कैलकुलेट कर लें, 30 minus 7 that will be equal to 6। इस केस में भी आपके न्यूट्रॉन क्या है, 6 है। in order to explain the energy diagram, now we can able to draw the neutron will be represented as in this way। इन दोनों की आप एनर्जी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करोगे और देखोगे कि विच वन इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, वे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इट इज n इज इक्वल टू 1, इन दिस केस n इज इक्वल टू 1। According to Pauli exclusion rule, two fermions or two identical particle will exist in the same state। So in this state proton 1 and proton 2 and neutron 1 and neutron 2 in case of this case, and similarly in this case neutron 1 neutron 2 आप किसी भी साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रोटॉन 2 एंड दो प्रोटॉन तो आपने इधर रखी है, बाकी आपके पास इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 6 है। तो आपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल ड्रॉ करना होगा, n इज इक्वल टू 2। इस केस में आप दो प्रोटॉन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे और सिमिलरली इसमें भी आपके पास प्रोटॉन की तादाद 7 है। इस केस में भी आपके पास क्या होगी, 2 होंगे और इसमें आपके पास न्यूट्रॉन आपके 2, आपकी टोटल कितनी हो गई 2 and 2 4 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितनी है 6 एंड थर्ड एनर्जी लेवल ड्रॉ करें। इस केस में भी आप क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन
एंड आपके प्रोटॉन भी 6 हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 2। एंड दिस केस आपके पास दो आपके ये आ गए, दैट इज न्यूट्रॉन एंड दैट इज 2 प्रोटॉन। And now we count the total number of neutron and proton. Total number of neutron will be equal to 6. 1 2 3 4 5 6. But the total number of proton is equal to 7. अब आप देखें तो इस केस में आपकी स्टेबिलिटी किसकी हाई होगी? आपकी इस केस में तो टोटल स्टेबिलिटी आपकी इस सिस्टम की हाई है, बिकॉज इन दिस सिस्टम आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। ये इवन सिस्टम है, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल सिस्टम। सो दिस न्यूक्लियाई नेवर डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। और इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में आपके पास एज़ कम्पेयर टू दिस इज़ लेस स्टेबल, बिकॉज इन दिस स्टेट आपके पास इवन ऑड स्टेट है, बट इट इज़ समवट स्टेबल। फिर भी ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसको कोई भी एविडेंस मीन कि इस केस में अगर इसको कोई कंडीशन मिल गई तो इट विल बी डिसइंटीग्रेट। तो आप जैसे आपके पास सिस्टम की एनर्जी हाई होती है तो आपके पास जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कोई ऐसा न्यूक्लियाई हो जिसमें आपके प्रोटॉन की तादाद आपके पास हो 6, बट आपके न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास क्या होनी चाहिए 7। इस तरह का कोई कम्बिनेशन हो जिसमें प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की तादाद 6, तो अगर आप इस केस में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें, इसकी एनर्जी डायग्राम, और देखें कि किसके सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब आप देखें 2 ये प्रोटॉन 2 1 2 4 and 2 6, and in this case आपके क्या होंगे, न्यूट्रॉन 7 है। इस एनर्जी लेवल को आप फर्स्ट को थोड़ा नीचे करके ड्रॉ कर लें, 2 इधर ड्रॉ कर लें, 2 4 2 4 6। अब ये वाला आपके पास एक्स्ट्रा है जो आपके पास हायर एनर्जी पे जाएगा। देखिए अब ये जब आपके पास हायर एनर्जी पे जाएगा तो दिस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, द सिस्टम एनर्जी विल बी इंक्रीज। अगर ये न्यूट्रॉन ना होता तो ये सिस्टम क्या था, स्टेबल था। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा कि अपने आप को, इस न्यूक्लियस की एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी, ये न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और ये न्यूट्रॉन ट्राई करेगा कि बीटा डिके कर ले, ड्यू टू बीटा डिके, एंड बीटा डिके के बाद ये स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, ऐसे न्यूक्लियाई कर ले जिसमें आपके प्रोटॉन 6 हों, न्यूट्रॉन भी 6 हों, और फिर क्या करे, डिसइंटीग्रेट हो और किसी और में कन्वर्ट हो जाए। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं एज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वी कैन कंक्लूड एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी इंक्रीजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी इंक्रीजेज, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस द रिपल्सिव फोर्सेज विल बी डोमिनेंट and attractive forces will be somewhat less effective as compared to repulsive forces, and the nucleus lead towards the instability. And the second one reason is that as the number of proton and neutron will be increases, then the energy of the system will be increases due to the extra neutron or proton that will be found in the higher energy state level. This neutron or proton, ये neutron या proton try to decay, disintegrate the nuclei and get stable nuclei. That's why we can say as the atomic number will be increases, the stability of the nuclei will be decreases. It's depend upon the number of proton and number of neutron. Confirm that as the number of neutron and proton increase, the stability of the nucleus will be affected, but the stability of the nucleus depend upon the nuclide inside the nucleus.
In order to determine कि either nucleus will be stable or not, we take simply neutron to proton रेशो। हाँ, आप न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को क्या करते हो, अगर आप किसी भी न्यूक्लियाई की प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो डिटरमाइन कर लो तो आप ये बता सकते हो दिस न्यूक्लियस विल बी स्टेबल और नॉट। इफ़ द रेशो बिटवीन द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो विल बी इक्वल टू 1, दैट इन दैट केस योर न्यूक्लियस विल बी स्टेबल। इस केस में आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा और मोस्टली लाइटर न्यूक्लियाई ऑब्जर्व कि लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं मोस्टली वो ये वाली रेशो को फॉलो करते हैं। बट अगर आपके पास हैवियर न्यूक्लियाई हो और उनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो तो इससे रेशो, अगर आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो देन दे विल बी कंसीडर एज स्टेबल, कि वो फिर स्टेबिलिटी भी गेन कर सकते हैं। दे विल आल्सो कंसीडर एज स्टेबल न्यूक्लियाई। इन दैट केस, उस केस में ये स्टेबल न्यूक्लियाई कंसीडर किए जाएंगे जब या तो उनके प्रोटॉन में से कोई एक एलिमेंट इवन काउंटिंग में हो, मीन क्या उनके फर्स्ट ऑफ ऑल के न्यूट्रॉन जो हो वो इवन हो या फिर उनके प्रोटॉन इवन, उस केस में वो समवट स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। ये इट इज़ नॉट जनरल रूल, इट्स रूल कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो स्टेबिलिटी की तरफ लाइक करेगा। या फिर ऐसे हो कि उनमें से दो जो आपके पास ये न्यूट्रॉन है और ये आपके पास प्रोटॉन है, या तो ये इवन कंडीशन में हों तब वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे, या फिर उनमें न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी हो वो इंक्रीज़ हो। अब न्यूट्रॉन की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डिवेल्प हो जाएगी ग्रेटर, तो वो समवट क्या करेंगे, कोलैप्स नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियाई को और वो स्टेबल कंसीडर किए जाएंगे। मीन के स्टेबल उस केस में आप कंसीडर करोगे कि फर्दर उसकी ब्रेकिंग न्यूक्लियाई की नहीं होगी। बट इट इज़ 100% कन्फर्म कि आपके अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्टर्बेंस हो तो वो न्यूक्लियस जो है वो समवट स्टेबिलिटी शो करता है, बट वो ट्राई करता है कि वो ये वाली प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो अटेन कर ले और वो स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। इस पर्पस के लिए आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियाई हैविंग प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1 और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो ग्रेटर देन 1 आर कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। तो व्हेन a graph was plotted between the number of proton and the number of neutron। ग्राफ प्लॉट किया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के बाद कि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को आपने एक्स एक्सिस पे लिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपने वाई एक्सिस पे लिया। आपके पास स्ट्रेट लाइन तब ऑब्टेन हुई जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो आपके पास कितनी थी, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। मीन के इस केस में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो क्या थे, इक्वल थे। तो इस केस में आपकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आपके पास किसकी इक्वल थी, 1 की इक्वल थी। इस स्ट्रेट लाइन में वो तमाम न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते थे जिनका एटॉमिक नंबर आपका 1, एटॉमिक मास 1, आप वो प्रोटॉन नंबर 1, और इस केस में एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन नंबर 2। इस एरिया में वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाई क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे। अब जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि तो देयर आर सम अदर टाइप ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर ऑब्जर्व नियर टू दिस लाइन। इस लाइन के बिल्कुल नियर क्या हुए, ऑब्जर्व हुए, एंड दैट विल बी कंसीडर एज स्टेबल। वो भी समवट उन्होंने भी क्या की, स्टेबिलिटी शो की। इस लाइन के नियर अबाउट आपके पास न्यूक्लियाई क्या हुए, एग्जिस्ट हुए, जिन्होंने समवट स्टेबिलिटी शो की, बट उनकी वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 1 थी। 100% ये स्टेबल नहीं थे, लेकिन ये जो आपकी इस कर्व के ज़्यादा नज़दीक थे वो ज़्यादा स्टेबल थे, जो इस कर्व से थोड़ा दूर थे वो क्या थे, आपके पास लेस स्टेबल थे। मीन के जिनकी वैल्यू
इसकी जो इस कर्व की जो लास्ट वैल्यू थी वो ये थी कि वो न्यूक्लियाई जिनकी स्टेट, जिनकी वैल्यू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो वैल्यू 1 to 1.5 तक थी, ये 1 से स्टार्ट होती थी और 1.5 तक लाई करती थी, वो इस जोन में क्या हुए, एग्जिस्ट हुए। अब इस जोन में जो 1.5 वाला या लेस जो आपकी इस डायरेक्शन में वैल्यू जाती थी नियर टू 1, दैट विल बी मोर स्टेबल। बट जो आपके पास इस डायरेक्शन में जाते थे न्यूक्लियाई, तो वो आपके समवट रेडियो एक्टिव प्रोसेस को शो करते थे कि अगर आपके पास 1.5 वैल्यू उनकी नहीं आती, मीन कि अगर 1.5 वैल्यू भी आ गई है, तो वो भी ट्राई करता था कि वो इस 1.5 के डिजिट को किसी तरीके से 1 में कन्वर्ट कर दे और इस स्टेबिलिटी जोन को किस तरफ मूव कर जाए, इस तरफ मूव कर जाए और इस लाइन को स्टेबल करने की, इस लाइन को फॉलो करने की ट्राई करे। ये आपके कौन से न्यूक्लियाई थे, जो हैवियर न्यूक्लियाई थे। और कुछ न्यूक्लियाई हैवियर ऐसे भी थे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद इंक्रीज होने से वो 1.5 के डिजिट तक भी वो स्टेबल होते थे, वो डिसइंटीग्रेशन लाई नहीं करते थे। तो इस केस में इस जोन को आप क्या बोलते हो, इस जोन को आप बोलते हो स्टेबिलिटी जोन या वैली ऑफ स्टेबिलिटी, जोन ऑफ स्टेबिलिटी, वैली ऑफ स्टेबिलिटी। इस एरिया को आप ये बोलते हैं। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, हम ये कहते हैं द एरिया, द शेडेड एरिया, इसको आप शेडेड एरिया से भी शो कर सकते हो। द शेडेड एरिया वेयर द स्टेबल न्यूक्लियाई विल एग्जिस्ट, कि आपके पास शेडेड एरिया near to the stability line, more stability line, या near to the line where neutron to proton ratio is equal to 1 and contain stable nuclei, called zone of stability। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो ये जो कंपाउंड है जो नेयर होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जो जैसे जैसे थोड़े दूर होते जाएंगे, जिनकी वैल्यू 1.5 की तरफ जाएगी, वो आपके पास लेस स्टेबल होंगे। इस केस को आप अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो तो आप ये कह सकते हो कि n over p will be never be equal to greater than 1, it will be equal to 1 and less than or equal to 1.5, then this state is known as zone of stability, and in this case almost आपके पास जो कंपाउंड है वो 70% तक या आपकी 50% तक स्टेबल कंपाउंड कंसीडर होते हैं, और सम कंपाउंड जो है उनकी वैल्यू जो है 1.5 से जो 1.5 की तरफ जाते हैं वो अनस्टेबिलिटी भी शो करते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड लाई करता है स्टेबिलिटी जोन से अबव, या इस लाइन से अबव जाता है, इधर आए, या फिर इसके नियर इधर आ जाए, या फिर आपके पास इधर लाई करे कोई भी कंपाउंड, तो वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा। एवरी कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू गेट स्टेबिलिटी एंड फॉलो द रेशो n इज इक्वल टू पी, कि वो n ओवर p की रेशो को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर आपके पास n ओवर p रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आपकी टू मच हाई हो किसी भी न्यूक्लियाई की, तो हाउ इट गेन स्टेबिलिटी, when n to p ratio, n to p ratio is high, मीन कि आपकी ग्रेटर देन वन है और 1.5 की तरफ जाती है, इट रीच स्टेबिलिटी, दैट न्यूक्लियाई रीच स्टेबिलिटी, दैट न्यूक्लियाई attain stability
द प्लॉट बाय बीटा डीके, कि मतलब वो आपका न्यूक्लियाई फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा डीके करेगा और फिर वो स्टेबिलिटी जोन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब आप अगर देखें तो ये बीटा डीके क्या होती है, बीटा डीके इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आपके पास क्या होता है, कन्वर्ट होता है, इसको आप क्या कहते हो, बीटा डीके। तो इस केस में आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई अगर उसकी ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी 1.5 से रिजेंबल भी कर सकती है। अगर वो वाला न्यूक्लियाई हो तो उस केस में आपकी अनस्टेबिलिटी हो तो वो क्या करेगा कि उसका जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन है, न्यूक्लियाई है, जो उसका न्यूट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे पड़ा है, ये वाला न्यूक्लियन, ये क्या करेगा, ये बीटा डीके करेगा। और जब ये बीटा डीके करेगा तो ये प्रोटॉन इमिट करेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट करेरेगा, तो ये न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक ऐसे न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी गेन करेगा जो आपके पास ऑलरेडी स्टेबल होगा। ये प्रोटॉन इस पी का मतलब ये है कि कोई भी न्यूट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर एक स्टेबल न्यूक्लियाई से रिजेंबल करता है। लेट्स सपोज इस केस में आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कार्बन के एक आइसोटोप है, ये आपके पास न्यूक्लियाई आइसोटोप भी हो सकते हैं, एटम्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 6, एटॉमिक मास आपके पास 14 है। अगर आप इसकी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपका Z = 6 और आपके पास आपके न्यूट्रॉन कितनी होंगे, = 14 - 6, दैट्स विल बी अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल, दैट्स विल बी इक्वल टू 8। अगर आप इसकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आप इसकी कैलकुलेट करें तो आपके पास 8/6, दैट्स विल बी इक्वल टू 1.33। इसका आपके पास आंसर क्या आता है, इसका आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आपकी ग्रेटर देन 1 है, दैट्स इक्वल टू 1.33। अब ये वाला न्यूक्लियाई क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए प्लॉट में n = p की वैल्यू को अटेन करने के लिए या इसके नज़दीक आने के लिए 1.3 इधर होगा अगर, तो वो इधर आने के लिए ये अब क्या करेगा, बीटा डीके करेगा, अंडरगो बीटा डीके। अब बीटा डीके करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब आप अगर देखें तो इसमें आपके पास बीटा डीके होगी 8 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 1.33। और ये बीटा डीके होगा तो उस केस में आपके पास क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो इसका एटॉमिक नंबर जो आपके पास है वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका आपके पास ये बीटा डीके के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 14 और इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 7 और प्लस आपके पास इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी। मीन कि ये प्रोटॉन बनाएगा, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किया और प्रोटॉन इसने पिक किया, 6 का इसका एटॉमिक नंबर 7 में चला गया। जिसका न्यूक्लियाई कौन सा था, ये प्रोटॉन, जिसका न्यूक्लियाई 7 और ऊपर उसके मैस के इक्वल आपके पास आया, तो उसके क्या मैस होगा, इसका मीन के इसमें 7 आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है और आपके पास 7 ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, तो आपकी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो इस केस में क्या होगी, 1 होगी। और ये बीटा डीके के थ्रू अपने आप को क्या कर देगा, स्टेबलाइज। अगर आप ये देखते हैं ये न्यूक्लियाई तो आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई हो, अगर आपके पास कुछ हैवियर न्यूक्लियाई हो, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो, तो वो इट इज़ नॉट 100% कन्फर्म कि वो ये कहें कि आप ये कहें कि वो बीटा डीके ही कहेंगे, वो अल्फ़ा डीके भी कर सकते हैं, वो बीटा डीके भी कर सकते हैं। वो तमाम रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू अपने आप को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अदर न्यूक्लियाई में और स्टेबल न्यूक्लियाई लेंगे। ये उस केस में है जब आपके पास लाइटर न्यूक्लियाई हों और जिनका एटॉमिक नंबर लेड के इक्वल या लेड से लेस हो, तो वो उनकी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो हाई हो और वो स्टेबिलिटी जोन में भी लाई करते हो, तो वो इस तरह से आएंगे। लेकिन जो स्टेबिलिटी जोन से आउट करेंगे, मीन के उनकी 1.5 से भी ग्रेटर होगी, तो उनके तमाम टाइप की उनमें क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी। उसकी एग्जांपल भी हम पढ़ लेंगे। अब हम एक ऐसा न्यूक्लियाई लेते हैं जिसमें आपके पास वो क्या है, उसकी स्टेबिलिटी जोन से
उसकी वैल्यू क्या है, लो है, मीन कि उसकी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो है वो लेस देन 1 है। हाउ इट गेट स्टेबिलिटी, कि वो किस तरह से क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसकी आप एग्जांपल ले, आप इन दिस केस जब आपके पास प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो इज लो, देन दिस न्यूक्लियाई लाई बिलो द स्टेबिलिटी जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या कहाँ जाएगा, लाई बिलो द स्टेबिलिटी जोन, स्टेबिलिटी एरिया भी आप बोल सकते हैं, कि ये 1 से भी कम होगा, लेस होगा। एंड सच न्यूक्लियाई हैव लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन न्यूक्लियाई में क्या होंगे, प्रोटॉन लेस होंगी, जिसकी वजह से आपकी ये रेशो जो होगी वो लेस होगी, और ये किसी भी एंड गेट स्टेबिलिटी बाय फॉलिंग बाय अंडरगोइंग फॉलिंग प्रोसेस, या तो ये अल्फा पार्टिकल इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, या तो ये क्या कर सकते हैं कि इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, मोस्टली ये क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन से ही करते हैं, या फिर ये कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे और अपने अंदर क्या करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे। अब हम इस केस पे एक एग्जांपल फॉलो करते हैं कि मतलब जो आपके पास न्यूक्लियाई जो होगा वो स्टेबिलिटी जोन से बिलो होगा, उसकी वैल्यू 1 से लेस होगी। लेट्स वी हैव एग्जांपल ऑफ ए 12 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7 एंड मास इज इक्वल टू 30। आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आपके पास 7, और न्यूट्रॉन कितनी होंगे आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट्स विल बी इक्वल टू 13 माइनस 7 6। in this case neutron to proton ratio will be equal to number of neutron is equal to 6, number of proton is equal to 7, 6 divided by 7 that will be equal to 0.857. in this case n over p is less than 1। इस केस में आपके पास n over p वैल्यू लेस देन 1 ये केस है कि बिकॉज इट्स आंसर इज इक्वल टू 0.857। तो ये क्या करेगा, ये कंपाउंड, ये न्यूक्लियाई नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियाई को क्या करेगा, आइसोटोप, ये पॉजिट्रॉन को इमिट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन। नाइट्रोजन 713 इमिट पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज। उसका मास और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन उसका चार्ज प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो उसको आप क्या कहते हो, पॉजिट्रॉन। इमिट करेगा पॉजिट्रॉन, तो फिर आपके पास होगा क्या, इसकी 7 की वैल्यू लेस हो जाएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में, और ये आपके पास 30। अब हम देखते हैं कि 613 की स्टेबल स्टेट है या नहीं है, कि मीन कि अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई 1 से और ये जून के अंदर लाई करेगा तो ये स्टेबल होगा, अदरवाइज़ ये फिर स्टेबल नहीं होगा, फिर ये डिसइंटीग्रेट होगा। अगर आप इस केस में देखो तो P इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 13 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू 7। 13 माइनस 6 is equal to 7. The neutron to proton ratio that will be equal to 7 by 6 is equal to, ये देखिए 1.1। तो ये स्टेप इस कर्व के बिल्कुल एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, उस कर्व के नज़दीक आ जाएगा, उस कर्व के अंदर लाई करेगा, दैट्स वेयर दिस इज स्टेबल।
पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे न्यूक्लियाई जो आपके पास जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो इस जून के एरिया में लाई करें या इस जून के एरिया में लाई करें, तो वो बीटा और अल्फ़ा दोनों डीके हो सकते हैं। जैसे आपके पास यूरेनियम की एग्जांपल आती है और अदर एग्जांपल्स आती हैं।